Good morning, children. This is Imran sir, and see, today I am going to teach you the second chapter of your syllabus, that is the address. See here, the address by Marga Minko. The name of the writer is Marga Minko. Marga Minko. So today I will be discussing about this chapter, its various themes, and I will tell you who are the main characters and what happens in this story. See, in this story, the writer has expressed the pain or the suffering of a daughter who visits the house of his mother's friend after a long time, and when he sees some goods that are associated with her family members or with her family. In fact, see, in this chapter there are two main characters. The one is Mrs. Dorling. The one is, see here, Mrs. Dorling, who lives in Marconi Street. The address is Marconi Street, and house number is 46. And the other character is Mrs. S. Something Mrs. S. Mrs. S. and her daughter. See, what happens in this story is that before the war in Holland, the people are very happy, very peaceful environment is there. But after the ending of the war, so many things have got changed. There have become so many problems in Holland, and whenever a person who are associated with the war happens to see anything that is related to the war, it disturbs them. So these all things are there in this story. This lady, Mrs. Dorling, is a friend of Mrs. S, and both are neighbors. And you know what happens? Before the war breaks out, Mrs. Dorling says to Mrs. S that, see, whatever valuable things are there in your house, I want to carry it with me, and I want to preserve it safely at my home. And whenever the war will be finished, then I will hand over all things to you, because you are here and the place is completely war torn, and nobody knows what is going to happen in the war. In any war-like condition, people will die, mortality rate will be very high, things will be disturbed, cattle will be disturbed. Everything will be there will be chaos all around. So during this chaos, whatever the valuable things you are having, it will not be preserved, and might be it would be disturbed. So better, for preserving all these things, let me take all the things of your house to me, and when the war will be finished, I will hand over, I will just give it you back to you. So these are the things like cutlery, some silver, metal, and some other goods, which household goods which are there at the house of this lady Mrs. S, are being given to Mr. Dorling, and she is living apart from the address or residence of Mrs. S. When the war finishes, and after somewhat, say 10 years, 20 years, whatever, her daughter visits this place. She wants to visit the house of Mrs. S. Mrs. Dorling, and the address is house number 46, Marconi Street. This girl, the daughter of Mrs. Dorling, the daughter of Mrs. S visits Mrs. Dorling, and at the door she asks, yes, is it this is Mrs. Dorling? Can I speak to her? Mrs. Dorling herself is on the stair, is on the ladder, and she said that no, she is showing unwillingness to talk to her, and whatever the sweater, whatever the things have been given to
this lady Dorling is a clear indicator that this is Mr. Dorling, because see in this chapter, let me read out the first paragraph. Do you still know me? I asked. I, the writer, asking this lady, Mr. Dorling, do you know me? The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. Like this lady, Mr. Dorling, is being asked by the writer that do you know me? And that writer herself is the daughter of Mrs. S. And she has come to speak to her. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence, like she was giving expression as if she was not familiar with the daughter of Mrs. S. So this is the thing scenario. Let me tell you in Hindi for your better understanding. देखो कहानी में होता क्या है कि दो लोग हैं, एक तो मिस्टर डॉर्लिंग है और एक राइटर है, मतलब जो बेटी है ना राइटर उसी को मतलब कह रहा है, मिस्टर एस है उनकी बेटी राइटर है, मतलब डॉटर उसकी है। और हॉलैंड में क्या हुआ है, वार हुआ है यहाँ पर। और वार के पहले क्या होता है कि मिस्टर एस के घर पर जो भी सामान है ना, जैसे कटलरी की वस्तुएं हो गई, चांदी का मेटल कुछ हो गया, जो भी कीमती वस्तुएं हैं वो रखी हुई मिस्टर एस। मिस्टर डॉर्लिंग उसकी पड़ोसी है, वो कहती है कि भाई काम करते जितने सारे सामान है ना आप हमको दे दो, हमारे यहाँ रहेगा, वरना अगर यहाँ रहता है सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। ये राजी होती है और सारा सामान इसको दे देती है और चली जाती है। बरसों बीतने के बाद इसकी बेटी जो है ना मिसेज एस की, राइटर हरसेल्फ, वह चाहती है विजिट करने के लिए मिसेज डॉर्लिंग की, क्योंकि इसकी मम्मी ने उसको एड्रेस दे रखा है कि हाउस नंबर 46 है और गली का नाम मरकोनी स्ट्रीट है। वो जाती है इसके घर पर, ठीक वही एड्रेस पर आती है, पूछती है कि भाई आप वही मिसेज डॉर्लिंग हो? तो बोलती नहीं। वो ये पूछती है कि आप मुझे पहचानते हो? ये बोलती है मिसेज डॉर्लिंग कि मैं पहचानती नहीं हूँ। और उसको बड़ा तकलीफ होता है, इससे बातचीत करने आई है। वो कहती है कि सुनिए मैं जो हूँ ट्रेन से आई हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। बोलते नहीं आप अगले दिन आओ। फिर से आती है, वो पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हो? वेल यू नो मी माई मदर आई आस्क्ड। अब जो राइटर है ना पूछती है कि अच्छा आप मुझे छोड़ दो, क्या आप मेरी मम्मी को जानती हो? राइटर को लगता है ना कि भाई मुझे भूल गई होगी, लेकिन जो मेरी मम्मी की सहेली थी, मेरी मम्मी को तो वो जानती होगी। वो पूछती है उससे, तो वो क्या करती है, देखती है उसको। और उसकी जो मम्मी है ना, कार्डिगन, ग्रीन नीडेड कार्डिगन, एक कपड़ा उसको दी है। किसको? मिसेज डॉर्लिंग को इसकी मम्मी ने दिया है। तो पहचान जाती है कि कपड़ा मेरी मम्मी का दिया वही है, लेकिन वो बस बात करती नहीं है। एक जो है मतलब राइटर है, उदास होकर चली जाती है वहाँ से। आने क्रम में क्या होता है, ट्रेन में आती है और ट्रेन में बैग उससे मिलती है और उसकी जो है बातों को याद करती है। और क्या होता है कि मतलब बहुत पहले जो है उसकी मम्मी ने ट्रेन में इंट्रोड्यूस कराया है इसको। बहुत पहले जिसकी मम्मी है मिसेज एस की, वो मिसेज डॉर्लिंग के बारे में परिचय कराया हो जानती है। कुछ दिन बीतता है, फिर वो उसके घर जाती है कि थोड़ा देखे क्या हालचाल है। कुछ बीतने के बाद भी जब उसके पास जाती है तो काफ़ी वो उदास रहती है। उसकी बेटी होती है, बोलती है कि मम्मी कहीं गई हुई हैं, मम्मी आती हैं तो मैं आपका उससे परिचय करा देती हूँ। लेकिन मम्मी आए इसके पहले ही वो सारा सामान देखती है और चाय पीने को बोलती है, चाय नहीं पीती है वो। और सामान जितना सारा है ना वार का टूटा फूटा वो देखती है और उसका दिल भर जाता है और फिर वहाँ से चली आती है। फिर उसके बाद से उसका मन नहीं होता है कि उसकी मम्मी से मिले, क्योंकि जो वार है ना उसको काफ़ी तकलीफ दे दिया है। जो वार हुआ है, जो चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं ना, मतलब वार के जो मतलब जो वार का भयानक सीन था, जो हार्मफुल इफेक्ट था, वो उसको भूल चुकी थी। लेकिन जो वस्तुएं जिसे डॉर्लिंग ने इसे घर से ला कर रख दिया था ना, उसको देखकर उसका मन बेचैन रहता है। सी इज कम्प्लीटली shattered. She is completely in trauma. Like she doesn't want to remember those past which gives her problem, which gives her some what's a pain. तो वो उसको भूल जाती है और कहती है कि नहीं, अभी इसकी मम्मी जो है ना मिसेज डॉर्लिंग की बेटी से बात होता है राइटर का, लेकिन ये जो है मिसेज डॉर्लिंग से नहीं मिल पाती, उसकी बेटी होती है। इसकी मम्मी इसके पहले आए वो चली जाती है और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर से सुन लो, राइटर है और उसकी मम्मी का नाम मिसेज एस है, उसकी सहेली मिसेज डॉर्लिंग, उसकी बेटी है और दोनों लोग मिसेज एस और मिसेज डॉर्लिंग सहेली है लोग। वार होने से पहले हॉलैंड में मिसेज डॉर्लिंग को यह बहुत सारा सामान दे जाती है, रखती है। और इसकी जो मम्मी है ना, राइटर की मम्मी, राइटर को सब बात दी है कि भाई आप इनसे मिलने जाना। बरसों बाद यह राइटर जो है मिसेज डॉर्लिंग से मिलने आती है। मुलाकात पहली बार में नहीं होता है, सेकंड बार में उसके पास जाती है, लेकिन वो नहीं होती, उसकी बेटी होती है। उसकी बेटी चाय मांगती, बोलती है कि चाय पी लो, बोलती चाय नहीं पीना है, हमें आपकी मम्मी से मिलना है। बोलते ठीक है आप वेट कीजिए, मम्मी आती होंगी। लेकिन मम्मी आए उसके पहले जो घर में सामान रखी है, जो उसके सारे सामान किसके, राइटर के, जो मतलब उस समय उसकी मम्मी ने इसको रोलिंग को दिया है, वो देखती है कि टूटा फूटा है, जला हुआ है, गोली चले हैं, बम चले हैं, उसका इफेक्ट है। तो उसको देख काफ़ी पीड़ा होती है।
हो सकता है उसको याद आता हो कि भाई बहुत सारे लोग उसके रिलेटिव मार दिए होंगे, उसके भाई बहन मार दिए गए होंगे, बहुत सारे सगे संबंधी या पड़ोसी लोग मार दिए होंगे, तो वो सब सामान देखकर ना उसको उस पीड़ा की याद आप फिर से ताजी हुई होगी। और इसलिए बिना मिसेज डोलिंग से मिले ही वो वहाँ से चली जाती है और कहानी यहाँ पर खत्म होता है। कहानी का संदेश यही है ना कि अगर पुरानी चीज़ें हों और दर्द देने वाली चीज़ें हों तो उसको भूल जाना चाहिए। जो पुरानी चीज़ें हों और उससे इंसान डिस्टर्ब हो जाए तो बेटर है कि हम उसकी बात ना करें, वरना अगर हम उसकी बातें करेंगे तो फिर वो बातें यहाँ पे आएंगी और हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, और डिस्टर्ब हमेशा वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो कहानी का ये संदेश है कि वी शुड फॉरगेट any past events, any past activities, any past memories which gives pain, because if you keep remembering those things, surely you will disturb, you will mentally in shock, mentally traumatized, and it will not pay anything. So we should better forget anything which is related to our past life or previous years which has given you some kind of shock to have a good life ahead. So इस पार्ट का थीम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।